Shut up and sit down. नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन. When the Second World War broke out in 1939, the Congress attitude was one of sympathy, though it refused unconditional cooperation. 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, कांग्रेस का रवैया सहानुभूतिपूर्ण था, जबकि इसने बिना शर्तों के सहयोग देने से इनकार कर दिया. The Congress demanded that India must be declared an independent union, and present application must be given to this status to the largest possible extent. कांग्रेस की मांग थी कि भारत को एक स्वतंत्र संघ घोषित कर दिया जाए और अंग्रेज सहमत नहीं हुए. ठीक है? The British did not agree, and as a result, all the ministries resigned in protest in 1939. अंग्रेज सहमत नहीं हुए. इसके परिणाम स्वरूप 1939 में सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया. A demand for provisional national government at the center was made at the instance of C. Rajagopalachari in 1940. 1940 में सी राजगोपालाचारी के अनुरोध पर केंद्र में अस्थायी राष्ट्रीय सरकार की मांग की गई. It was turned down by the Viceroy Lord Linlithgow. अब देखिए, लॉर्ड उस समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा यह अस्वीकार कर दिया गया. In October 1940 was launched the civil disobedience campaign. Acharya Vinoba Bhave was the first to offer individual satyagraha. अक्टूबर 1940 में सविनय आज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन शुरू किया गया. आचार्य विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह देने वाले थे. आगे देखिए. ऑल इंडिया कमिटी ऑफ द कैबिनेट विथ अटली एज chairperson was set up and a draft declaration was made. अटली की अध्यक्षता में कैबिनेट की अखिल भारतीय समिति गठित की गई और घोषणा पत्र का प्रारूप बनाया गया. In March 1942, Sir Stafford Cripps came to India with the draft declaration. मार्च 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स घोषणा पत्र लेकर भारत आए. It is stated that the British government's desire to grant India dominion status at the end of the war. इसमें युद्ध के बाद भारत को प्रभुत्व राज का दर्जा देने की ब्रिटिश सरकार की इच्छा को व्यक्त किया गया था. Complete independence was not promised. संपूर्ण स्वतंत्रता का वादा नहीं किया गया था. There was no mention of a national government of the Indian people. भारतीय लोगों की राष्ट्रीय सरकार की कोई चर्चा नहीं थी. The Congress rejected the offer. कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया. The Muslim League, opposed to the creation of a single union, found this scheme unacceptable as it did not unequivocally conceded Pakistan. The Cripps mission failed. अब देखिए, मुस्लिम लीग ने एक ही संघ बनाने का विद्रोह किया. इस प्रकार यह योजना अस्वीकार्य रही क्योंकि इसमें पाकिस्तान को स्पष्टतः नहीं माना गया. क्रिस्प मिशन असफल हो गया. The struggle for independence was carried on by Subhash Chandra Bose from abroad. सुभाष चंद्र बोस द्वारा विदेश से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चलाया गया. He found the outbreak of the Second World War to be a convenient opportunity to strike a blow for the freedom of India. उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत को भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों पर चोट करने का एक सुविधाजनक अवसर पाया. Bose had been put under house arrest in 1940,
but he managed to escape to Berlin on March 28, 1941. बोस को 1940 में उनके घर में ही कैदी कर दिया गया था, लेकिन 28 मार्च 1941 को वे बर्लिन निकल भागने में सफल रहे। The Indian community there acclaimed him as the leader, नेताजी। वहां भारतीय समुदाय में उन्हें नेताजी के रूप में सम्मान दिया गया। He was greeted with Jai Hind, salute to the motherland. उनका जय हिंद से स्वागत किया गया। He tried to raise an Indian army and urge his country people to rise in arms against the British. उन्होंने एक भारतीय सेना की शुरुआत करने की कोशिश की और अपने देश के लोगों को ब्रिटिश के विरुद्ध हथियार उठाने को प्रेरित किया। In 1942, the Indian Independence League was formed and a decision was taken to form the Indian National Army (INA) for the liberation of India. 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई और भारत को आज़ादी के लिए इंडियन नेशनल आर्मी के गठन का निर्णय लिया गया। On an invitation from Raj Bihari Bose, Subhash Chandra Bose came to East Asia on June 13, 1943. राज बिहारी बोस के एक आमंत्रण पर 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस पूर्वी एशिया आए। He was the president of the Indian Independence League and the leader of the INA, popularly called Azad Hind Fauj. उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष और INA, जिन्हें आज़ाद हिंद फौज कहा जाता था, उनका अध्यक्ष बनाया गया। He gave the famous battle cry, "Chalo Dilli." He promised independence to Indians, saying, "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा." You give me blood, I will give you freedom. In March 1944, the Indian flag was hoisted at Kohima. उन्होंने प्रसिद्ध युद्ध घोष चलो दिल्ली दिया। उन्होंने भारतीयों से स्वतंत्रता का वादा यह कहते हुए किया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मार्च 1944 में कोहिमा में भारतीय झंडा फहराया गया। Unfortunately, after that the movement collapsed. दुर्भाग्यवश आंदोलन खत्म हो गया। What happened to नेताजी remains a mystery. नेताजी के साथ क्या हुआ, यह एक रहस्य ही रह गया। It is said that he lost his life in an air crash in August 1945, but it could not be ascertained. The INA continued to occupy an honored place in India's freedom struggle. The intense patriotism of Bose and the soldiers of the INA proved a tremendous source of inspiration for the Indian people. अगस्त 1945 में एक हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु की सूचना दी गई, लेकिन INA ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में एक सम्मानित स्थान पर अपना कार्य करता रहा। बोस एवं INA की सेना की अति देशभक्ति ने भारतीय लोगों के लिए प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत सिद्ध हुआ।